of a covalent bond. What is covalent bond? Suppose we are having atom A contributing one electron, then we are having atom B is also contributing one electron. So each atom is contributing one electron. Each atom is contributing one electron. And then A will bring its electron. B will also bring its electron. They will share this pair of electron. Share. And this bond, the shared pair of electron is called covalent bond. See, atom A contribute one electron, atom B contribute one electron. That means each atom is contributing one electron. And then they shared, like A will take the electron from its own electron plus electron from B. B will take electron its own and plus electron from A, and they'll complete their duplet. And so they shared a pair of electron. Shared pair of electron is this whatever electron pair they are sharing. Whatever electron pair they are sharing, the shared pair of electron is called as a covalent. So basically, covalent bond is formed due to sharing of electron pair. Covalent bond is formed due to sharing of electron pair. Covalent bond कैसे form हो रहा है? It is formed due to sharing of electron pair. So now we are going to see the next heading, that is either you can say bond fusion, or you can say cleavage of covalent bond fusion, or it can be called as what? A cleavage of covalent bond, breaking of the bond. Cleavage means what I'll write meaning bond fusion, or it can be also called as a cleavage of a covalent bond. Now, what is the cleavage of the covalent bond here? The process of breaking, or cleavage of a covalent bond is known as bond fusion. The process of breaking के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज करोगे? क्लीवेज. The process of breaking or cleavage of a covalent bond is known as a bond fusion. अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे,
The breaking of the covalent bond are called as a cleavage of a covalent bond, or which is also known as the bond fission. Okay. The bond fission take place in two ways. The bond fission take place in two ways. The first one is homolytic fission, and second one is called as a heterolytic fission. The bond fission take place in two ways: homolytic fission and heterolytic fission. Homolytic and heterolytic fission, correct? So now first we'll discuss about the homolytic fission. So what we have seen so far, we have first seen here ki what is covalent bond? The bond which is formed due to a sharing of electron pair. The bond which is formed due to sharing of electron pair are called as a covalent, correct? Then covalent bond is formed due to sharing of electron pair. The process of breaking of a covalent bond is known as a bond fission or a cleavage. The bond can be of two types. Bond can break in the two ways: homolytic fission and heterolytic fission. Homolytic fission, or is also called as a heterolytic fission. Now first we will see the meaning of homolytic fission. Homolytic fission What is homolytic fission? What is homolytic fission? The symmetrical breaking of a covalent bond. Symmetrical breaking of a, the covalent bond will break, but covalent bond will break how? Symmetrically between the two atoms. मतलब दो atoms के बीच में जो covalent bond है, the bond will break symmetrically and each atom acquires one electron. हर एक atom को एक electron मिलेगा of shared pair. See, basically for example, अगर हमारे पास दो A single bond B है, A single bond B means what? The one bond is made up of two electrons. One single bond is made up of two electrons. But in this case, one electron will go to A and one electron will go to B. So A will get its electron back and B will also get its electron back. So A. So between A and B, one single dash. One single dash means what? A pair of electrons. Between A and B, there is a one single dash. One single dash means between A and B, there is one pair of electron. तो A एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, B ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन बॉन्ड ब्रेक होते समय क्या होगा? A अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और B अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा. मतलब बॉन्ड कैसा ब्रेक? और एक को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, B को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. तो इसीलिए क्या हम लोग इसे बोलेंगे? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड. Symmetrical breaking of a covalent bond between the two atoms such that each atom acquires one electron of the shared pair is called as the homolytic atom. Homolytic fission. मतलब जो बॉन्ड A और के B के बीच में था, वो सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना था? दो इलेक्ट्रॉन से बना था. दो इलेक्ट्रॉन कैसे थे? A ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, B ने एक दूसरा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था. लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होगा,
जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ओके। और हमें कैसा बॉन्ड होगा, सिमेट्रिकल, मतलब बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, सिमेट्रिकली। ए को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बी को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब बॉन्ड कैसा ब्रेक हो रहा है, सिमेट्रिकली ब्रेक हो रहा है। सिमेट्रिकली ब्रेक हो रहा है मतलब कैसा हो रहा है, ईच एटम एक्वायर्स वन इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ऑफ शेयर्ड पेयर। सच फ्यूजन इज कॉल्ड एज व्हाट, होमोलिटिक फ्यूजन। ओके, इट इज कॉल्ड एज होमोलिटिक फ्यूजन। Say second. See here, the second point क्या आएगा, moment of the single electron. Moment of single electron is shown by a half-weighted curve arrow. मतलब moment of a single electron, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ए की तरफ जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहा है. So moment of single electron is shown by half-headed curve arrow or by a fish hook. मतलब हमें एरो कैसे ड्रॉ करना है यहाँ पे, हाफ एरो, मतलब देखो ये एरो, ये एरो, half arrow. So moment of the single electron, moment of single electron is shown by half-headed curve arrow or a fish hook. Correct? Moment of single electron is shown by half-headed curve arrow or a fish hook. Then second, such fusion take place. मतलब fusion कभी होगा? The fusion take place in the presence of ultraviolet light. ये जो हमारा fusion है यहाँ पे conditions क्या रहेगा? Ultraviolet light. और कंडीशन क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर. द फ्यूजन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और एट अ हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल पेरोक्साइड. ओके, मतलब बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक होने के लिए, बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक होने के लिए हमें क्या कंडीशन की जरूरत है, आइदर वी रिक्वायर द अल्ट्रावायलेट लाइट और वी रिक्वायर द हाई टेम्परेचर और वी रिक्वायर द पेरोक्साइड. देन the homolytic fusion of a covalent bond give rise to a neutral species carrying one unpaired electron each. देखो यहाँ पे इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है. सो हियर सिंगल, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल. एंड फ्री रेडिकल आर न्यूट्रल स्पीसीज. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, ए के ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं, बी के ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं, तो उन्हें हमें क्या बोलेंगे, न्यूट्रल स्पीसीज. सबके पास एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और जिनके पास एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा उनको और हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल. उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल. सो हियर व्हाट वी सेड, द होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, the homolytic fusion of a covalent bond give rise to a neutral species carrying one electron, one unpaired electron each. Okay, I'll turn the page. What is the next one here? Species with unpaired electron is called as a free radical or sometimes it is just called as a radical. तो यहाँ पे हमें जो species मिल रहा है, यहाँ पे हमें जो species मिल रहा है उससे हम क्या बोलेंगे, free radical or sometimes it is called only as a radical. Correct? The species with unpaired electron is called as a free radical or sometimes it is just called as a radical. ये जो हमें free radical मिलेगा ये कैसा रहेगा, unstable रहेगा and therefore it is more reactive. मतलब वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है मतलब वो उस फॉर्म में ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, तो ये अनस्टेबल है इसलिए क्या रहेगा, रिएक्टिव रहेगा. एंड फ्री रेडिकल हैव ओनली, फ्री रेडिकल हैव ओनली ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस, मतलब इट विल एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज क्योंकि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है इसलिए क्या करेगा, वो थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा एंड दैट इज दे आर शॉर्ट लिव, मतलब बहुत कम टाइम तक एग्जिस्ट करेगा एंड देयरफॉर दे आर हाईली रिएक्टिव. therefore they are highly reactive. ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पे वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्यों है, अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उसको उसका ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस, उसका जो एग्जिस्टेंस है उस स्मॉल टाइम के लिए, तो फ्री रेडिकल हैव ओनली ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस, like it is going to exist only for a small time. That means it is a very short lived
and therefore it is highly reactive. करेक्ट. तो ये हमने फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा. मतलब ये फ्री रेडिकल हमें कभी मिलेंगे अगर हमारा कोवैलेंट बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक होगा. तो सिमेट्रिकली का मतलब A will get its electron back and B will also get its electron back. So every atom, if they will get their own electron back, then the species form. Then the breaking of the covalent bond is called as homolytic fission. जो species हमें मिलेंगे उन्हें हमें क्या बोलेंगे, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा तो उन्हें हमें क्या बोलना है, न्यूट्रल स्पीसीज. और न्यूट्रल स्पीसीज को ही हमें क्या बोलना है, फ्री रेडिकल बोलना है. करेक्ट. तो ये कभी हमें मिलेंगे अगर हमारा बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक होगा. तो अगर हमारा कोवैलेंट बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक होगा तो. ओके. तो ये हमारा. अभी इसके बारे में एक दो एग्जांपल लेते हैं. अगर यहाँ पे अगर मैंने ऐसा बोला CH3Cl का मतलब क्या हुआ, CH3 और C के बीच में एक पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है. करेक्ट. कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया रहेगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दिया. लेकिन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन विल गो टू कार्बन, one electron will go to chlorine. So what will get here, CH3. इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड क्लोरीन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो अगर कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ग्रुप मिथाइल है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ मिथाइल फ्री रेडिकल. इट इज कॉल्ड एज अ मिथाइल फ्री रेडिकल. और ये हमारा बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोरीन फ्री रेडिकल. क्लोरीन फ्री रेडिकल. तो फर्स्ट देखो, मिथाइल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो मिथाइल फ्री रेडिकल. क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसे क्या बोले, क्लोरीन फ्री रेडिकल. सो बेसिकली अगर हमें बोलें कि व्हाट इज फ्री रेडिकल, उसका डेफिनेशन अगर देना रहेगा तो व्हाट इज फ्री रेडिकल एंड सो व्हाट इज द फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल का मतलब देखो, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं. तो फ्री रेडिकल में व्हाट, अनचार्ज स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे, अनचार्ज. कोई भी चार्ज नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बट एवरीबडी कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, ईच वन कंटेन a single electron, and such species are called as the free radical. So what is free radical? An uncharged species which is electrically neutral and contains a single electron is called as the free radical. And uncharged species which is electrically neutral and contain a single electron is called as the free radical. तो ये हमारा homolytic fusion के बारे में हुआ. Now we'll go for the heterolytic fusion. What is heterolytic fusion? The unsymmetrical, यहाँ पे bond कैसे break होगा, unsymmetrically break होगा. Unsymmetrical breaking of a covalent bond between the two atoms such that more electronegative atom, मतलब जो ज्यादा electronegative atom रहेगा, more electronegative atom acquire both the electron of shared pair is called as the heterolytic fusion or heterolysis. I'll repeat again here. The unsymmetrical breaking of a covalent bond. The covalent bond कैसे break होगा, unsymmetrically break होगा between the two atom. और इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर will go towards the more electronegative atom, and more electronegative atom will acquire both the electron of shared pair are called as the heterolytic fusion or heterolysis. I'll give you the example first. I will give you the example.
suppose we are having the bond between A and B, if B is more electronegative than A, B is more electronegative than A, तो क्या होगा यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे होगा इन द प्रेजेंस हेटेरोलिसिस होगा, B is more electronegative, तो B क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी लेगा और A का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन B के पास चले जाएंगे, तो B will get both इलेक्ट्रॉन, खुद का इलेक्ट्रॉन भी B को मिलेगा और A का इलेक्ट्रॉन भी B को मिलेगा, and B will become negatively charged, and A ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो A will become positively charged. See, the positively charged species are called as the cation, negatively charged species are called as the anion. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो हमें यहाँ पे मिल रहा है A और B के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड था. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब द बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. द बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो B को अपना इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा और A का इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा. तो एक कंप्लीट एरो, एक ऐसा एरो है, देखो कंप्लीट एरो है, कंप्लीट एरो. होमोलिटिक फ्यूजन में क्या था, हाफ एरिड एरो था, यहाँ पे कंप्लीट एरो, दोनों इलेक्ट्रॉन B की तरफ जा रहे हैं, तो B को अपना इलेक्ट्रॉन मिला प्लस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, इसलिए B के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव. एंड नेगेटिव चार्ज को क्या बोलना है, एनायन. और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्यों, A ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो A क्या बनेगा, कैटायन. सिमिलरली अगर हमने ऐसा एग्जांपल कंसीडर कर दिया, A सिंगल बॉन्ड B, बट इफ A is more electronegative than B. A is more electronegative than B. तो A मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, A के पास चले जाएंगे, बिकॉज नाउ A is more electronegative. So here occur heterolysis. A will get its electron plus electrons of B, तो A will become negatively charged, and B ने अपना इलेक्ट्रॉन A को दे दिया तो B will get the positive charge. तो अभी यहाँ पे A बनेगा एनायन और B बनेगा कैटायन. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, देखो इन दिस फर्स्ट एग्जांपल B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो B क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, A का इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, तो B इज नेगेटिव, A इज पॉजिटिव. अगर हम लोग A और B के बीच में कंसिडर करेंगे तो A क्या कर रहा है, A अपना इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, B का इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, क्यों, बिकॉज A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो A हैज अ नेगेटिव चार्ज, करेक्ट. ये हमारा फ्यूजन है. तो व्हाट इज हेटेरोलिटिक फ्यूजन, द अनसिमेट्रिकल. यहाँ पे ब्रेकिंग कैसा हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा बॉन्ड कैसा ब्रेक हो रहा है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रहा है. अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम सच दैट, कैसे, more electronegative atom acquires both the electron of shared pair is called as the heterolytic fission or heterolysis. ओके, दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, कौन लेके जाएगा, लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो. अब इसके बारे में और पॉइंट स्टडी करते हैं हम लोग. सेकेंड पॉइंट आई विल राइट हियर. वन मिनट. The moment of the electron, see here, the moment of an electron pair is represented by curve arrow. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहा है, moment of the electron is shown by curve arrow. The moment of electron is shown by curve arrow. Second, the fusion take place in the presence of polar solvent. मतलब यहाँ पे जब हम लोग fusion करेंगे तो we require polar solvent. We require जब हम लोग यहाँ पे fusion करेंगे तो fusion require what, polar
solvent, will require the polar solvent. The fusion take place in the presence of polar solvent, correct? And second, heterolytic fusion give rise to two species, one with negative charge and other with a positive charge. मतलब हमें दो species मिलेंगे, एक का चार्ज रहेगा पॉजिटिव और दूसरे का चार्ज रहेगा नेगेटिव. Heterolytic fusion give rise to two species, one with the negative charge and one with the positive charge, correct? I'll turn the page. हमें यहाँ पे जो दो आयन मिलेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 स्टेट. मतलब हमें दो आयन मिलेंगे. हमने यहाँ पे देखा था कि हमें ब्रेकिंग के बाद एक मिल रहा है कैटायन, दूसरा मिल रहा है एनायन. यहाँ पे भी एक मिल रहा है कैटायन, दूसरा मिल रहा है एनायन. तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन गिव राइज टू व्हाट? टू स्पीशीज, वन विद नेगेटिव चार्ज एंड अदर वन विद अ पॉजिटिव चार्ज. तो एक रहेगा नेगेटिव चार्ज और दूसरा रहेगा पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे सेम मैंने बोला जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. और जिसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? नेगेटिव चार्ज पर 8. वैलेंशियल विद एटलीस्ट वन लोन पेयर. मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, करेक्ट? अभी इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो. इन CBr बॉन्ड, CBr मतलब द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br. इन CBr बॉन्ड मतलब बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br. द ब्रोमीन एटम, ये हमारा ब्रोमीन एटम है. ब्रोमीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो क्या करेगा? कार्बन ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा. तो इन CBr बॉन्ड ब्रोमीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम and hence electron pair is retained on bromine atom. तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे? ब्रोमीन के पास चले जाएंगे. क्यों ब्रोमीन के पास चले जाएंगे? बिकॉज ब्रोमीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. देखो, आई रिपीट अगेन. इन CBr बॉन्ड bromine is more electronegative than carbon atom, and because bromine is more electronegative than carbon atom, तो ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन भी लेगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेगा और ब्रोमीन के ऊपर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा. अभी देखो यहाँ पे CH3Br. CH3Br, I'll just write here. Br is more electronegative than carbon. Br is more electronegative than carbon. तो यहाँ पे क्या होगा? Br अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेगा. तो Br के पास एक्स्ट्रा पेयर आ गया. एक्स्ट्रा पेयर को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर. एक्स्ट्रा पेयर को आप क्या बोलोगे? लोन पेयर. तो Br के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो Br नेगेटिव चार्ज हो गया और कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, करेक्ट? तो ये हमारा बनेगा कार्बोकैटायन. तो यहाँ पे जो हमें मिथाइल मिल रहा है उससे हम लोग मिथाइल को क्या बोलेंगे? हम लोग कार्बोकैटायन बोलेंगे. और ये हमारा है ब्रोमाइड. Br माइनस इज कॉल्ड एज ब्रोमाइड. और ये हमारा मिथाइल, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. द नेम इज मिथाइल कार्बोकैटायन. इसका नाम है मिथाइल. तो मिथाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए उसे क्या बोलना है? कार्बोकैटायन बोलना है. मिथाइल कार्बोकैटायन. द स्पीसीज, तो इसका मतलब क्या था? स्पीसीज इन विच कार्बन एटम possess the 6 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. कैसे 6? देखो यहाँ पे CH3. देखो CH3 मतलब देख कार्बन के बाजू में कितना? एक सिंगल बॉन्ड. 1 सिंगल बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज कॉल्ड एज अ 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड एज अ 6 स्टेट ऑफ द कार्बन के बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6. द स्पीसीज इन विच carbon atom possesses 6 state of electron on positive charge are called as the carbocation. तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन. और कार्बोकैटायन को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनियम आयन. और ये कार्बोकैटायन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. डेफिशिएंट क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 है. कोई भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो उसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए. लेकिन इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. देखो मैं वापस रिपीट करता हूँ. इन CBr बॉन्ड ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम. तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए, ब्रोमीन के पास चले जाएंगे. तो ब्रोमीन विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड कार्बन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. कार्बन है CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं. कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए कार्बोकैटायन. द स्पीसीज इन विच, जिस स्पीसीज में कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम लोग क्या बोलना है, कार्बोकैटायन बोलना है और कार्बोनियम आयन बोलना है. जिस स्पीसीज में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसे कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन बोलना है. करेक्ट. तो ये हमारा कार्बोकैटायन.
यहाँ पे क्या हो रहा है, इन CZ बॉन्ड, इन CZ बॉन्ड मतलब अगर हमारे पास कार्बन Z बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन CZ बॉन्ड कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट। कार्बन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन और Z बॉन्ड में, कार्बन और Z में कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन भी लेगा और Z का इलेक्ट्रॉन भी लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, कार्बन के पास। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास चले जाएंगे तो कार्बन मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ CH3, CH3, दोनों कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी और Z का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास चला जाए तो कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये बनेगा निगेटिवली चार्ज और Z बनेगा पॉजिटिवली चार्ज, करेक्ट। कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे C मतलब कार्बन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Z। मतलब अगर हमारा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा कंपेयर टू Z, तो कार्बन और Z में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे जा रहा है, कार्बन के पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास जा रहा है और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, द स्पीसीज इन विच, द स्पीसीज इन विच कार्बन एटम पोजेस द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, देखो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है, CH3 और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, तो अभी देखो निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे वन बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वन बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वन बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो कितने, और ये दो इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जिसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, उससे हमें क्या बोलना है, कार्बन बोलना है, उससे क्या बोलना है, कार्बन। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे कार्बन को आप क्या बोलोगे, कार्बनाइन बोलोगे। और कार्बनाइंस आर इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। द स्पीसीज इन विच carbon atom possess a octet of electron and a negative charge is called as a carbanion, is called as a carbanion, okay। तो हम एक स्मॉल डिस्टिंग्विश देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर कार्बन Br में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन अगर Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे क्या बोलना है, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन बोलना है, और ये कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, करेक्ट। सिमिलरली अगर कार्बन Z बॉन्ड में अगर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, और अगर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, उसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट है, तो उसे क्या बोलना है, कार्बन आयन। मतलब अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बोनियम आयन, और कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन आयन। तो हमने दो कैटायन देखे, कार्बोकैटायन, यहाँ पे क्या दो देखे स्पीसीज हम लोगों ने, एक देखा कार्बोकैटायन और दूसरा क्या देखा, कार्बो एनायन, कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग ने लास्ट पार्ट क्या देखेंगे, जिसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा उसे कार्बोकैटायन बोलना है, और जहाँ पे कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा उसे कार्ब एनायन बोलना है। यहाँ पे कार्बोकैटायन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है, इसीलिए उसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलोगे। और कार्ब एनायन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉन रिच बोलोगे। तो देखो, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा तो उसे क्या बोलना है, कार्बोकैटायन। कार्बन जब नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो उसे क्या बोलना है, कार्बन आयन। अगर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बोकैटायन। और कार्बन आयन में क्या हो रहा है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो आज हमने दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया, होमोलिटिक फ्यूजन एंड हेट्रोलिटिक फ्यूजन। व्हाट इज होमोलिटिक फ्यूजन, bond breaks in the symmetrical manner, and what is heterolytic fusion, the bond breaks in the unsymmetrical manner, okay। We'll stop it over here, remaining part we'll do it in the next lecture.